الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ہم الدرس الثامن شروع کر رہے ہیں 8واں لیسن بک 1 کا دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. اس کی طرف 8واں لیسن ہم اب شروع کر رہے ہیں. تو کل تک آپ نے پڑھا تھا ہاذا مینز آپ نے اس میں اشارہ پڑھا، ہاذا کے بعد حاضی بھی پڑھا آپ نے، اور ذالک بھی پڑھا اور تل کا بھی پڑھا. تو آپ نے یہ پڑھا کہ یہ اس میں اسمائی اشارہ ہیں، یہ مذکر کے لیے آتا ہے، ہاذا حاجی مونس کے لیے آتا ہے، ذالکا مذکر کے لیے لیکن دور کے لیے، اور تل کا دور کے لیے مگر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جملے میں یہ استعمال جب ہو گئے تو یہ بطور مبتدا استعمال ہو رہے تھے. ہم نے دیکھا ہاذا ولدن، ہاذا مبتدا اور ولدن اس کی خبر، ہاذا کتابن، ہاذا مبتدا اور کتابن اس کی خبر، ہاذا بابن، ہاذا مبتدا اور بابن اس کی خبر. تو یہ تو ہم نے کل دیکھا تھا، لیکن جب ہم اس طرح استعمال کرتے تھے تو ہاذا کی خبر جو تھی وہ ہمیشہ وداؤٹ الف لام ہوا کرتی تھی. یعنی ہم کہتے تھے ہاذا ولد، ہاذا الولد، نہ کہ ہاذا الولد. تو ہم لکھتے تھے ہاذا ولدن، ہاذا کتابن، ہاذا طبیبن، ہاذا طالبن، اسٹوڈنٹ، یا چیزوں کی طرف اشارہ کر کے استعمال کرتے. اسی طرح ذالکا تلکا اولئک کے بارے میں آپ قیاس کریں، ان کو بھی ہم ایسے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہاذا کو ہم نے زیادہ استعمال کیا تو اسی کی زیادہ مثالیں میں دے رہا ہوں. تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے اس لیسن کا پہلا جو یہ ہے کیا نام ہے، پہلا حرف جو ہے وہ بھی ہاذا ہے، وہ بھی کیا ہے، ہاذا. لیکن اس ہاذا کے بعد جو اسم آیا ہے وہ الرجل ہے، یعنی الف لام والا ہے. وہ کیا ہے، وہ الف لام والا ہے. یعنی جب ہم آج تک پڑھ رہے تھے تو وہ ہاذا کے بعد جو اسم آیا کرتا تھا وہ انڈیفینٹ ناؤن ہوا کرتا تھا، اس میں نکرہ ہوا کرتا تھا. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہاذا کے بعد ایک ڈیفینٹ ناؤن آ گیا الف لام کے ساتھ، الرجل، ہاذا الکتاب، ہاذا الباب وغیرہ. تو اس کے اگر ہم لکھیں گے ہاذا ولدن، جیسے میں یہاں ایک ٹیکسٹ لکھتا ہوں، ہاذا رجلن، رجلن، ہاذا رجلن. تو اس جملے اور اس جملے میں کیا فرق ہے، یہ ہمارے پاس آج کا پہلا بنیادی نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے. ہاذا رجلن جب ہم کہتے ہیں تو یہ پورا جملہ ہے، اور اس کا معنی ہے ہاذا مینز this is a man, this is a man, this is a man. ہاذا رجلن، this is a man. so ہاذا مبتدا یہاں ہے اور رجلن اس کی خبر ہے. لیکن آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے ہاذا الرجل، ہاذا الرجل. جب الف لام آ گیا تو ایک ہی پیش آئے گا. تو ہاذا الرجل جو ہے یہ اس کا معنی ہوگا، اس کا معنی This is the man. no this man, only this man. اس کا معنی ہوگا only this man. یعنی اب یہ اوپر یہ جو تھا، اوپر یہ پورا سینٹینس تھا، اوپر یہ کیا تھا، اوپر یعنی ہاذا رجل جو ہے یہ پورا سینٹینس تھا، پورا جملہ تھا. لیکن اب نیچے جو آ گیا ہاذا الرجل، یہ پورا سینٹینس نہیں، it became just a phrase, just a phrase. یہ پورا سینٹینس نہیں ہے. ہاذا الرجل this is a phrase now، ایک فریز بن گیا بس. دس مین، اب آپ کو پتا نہیں میں اس آدمی کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہوں.
तो इस जैसी तरकीब में हम कहते हैं हाजा जो है, हाजा ये इसमें इशारा है, ये इसमें इशारा है, हाजा इसमें इशारा। और अर्रजुलु जो है, अर्रजुलु ये अर्रजुलु है मुशारुन इलैहि, मुशारुन इलैहि, इलैहि मुशारुन इलैहि, ये इसमें इशारा और मुशार इलैहि मिलकर क्या बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम ये मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी। अभी मुरक्कब इशारी है, मैंने कहा ना 4 मुरक्कबात आप पढ़ने हैं, 2 तो आप हमने पढ़े, एक हर्फ जार प्लस मजरूर यानी मुरक्कब जारी, नंबर 2 एक इसम दूसरे इसम की तरफ जो है मुजाफ करके इस्तेमाल किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम मुरक्कब इजाफी, और आज तीसरी भी पढ़ रहे हैं हम, इसको बोलते हैं मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी। इस मुशारुन इलैहि का ये जो ऊपर आपने देखा यहाँ अर्रजुल, यहाँ इस अर्रजुल के मैंने कहा कि इसको मुशारुन इलैहि कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम है क्या, इसका दूसरा नाम है बदल, इसका दूसरा नाम क्या है, बदल, इसको बदल भी बोलते हैं। यानी तो इससे आपको पता चलता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो 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 लेसन है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें इशारा, इसमें इशारा, अल्लती लहा बदल, जिसका बदल है, जिसका कोई बदल है, अल्लती लहा बदल, इसमें इशारा, अल्लती लहा बदल। ये आज के लेसन का जो है एक मेन पॉइंट है ग्रामर का जो आपको सीखना है। तो इसमें माने के लिहाज से सिर्फ यही चीज देखेंगे, जब आप हाजा या जालिका या तिलका या हाजी के बाद कोई अल्फ लाम के बगैर वर्ड लिखते हैं तो इसका माने होता है, मिसाल के तौर पर हाजर रजुल, दिस इज अ मैन, लेकिन हाजर रजुल अगर लिखेंगे अल्फ लाम के साथ तो इसका माने होगा सिर्फ दिस मैन, दिस मैन, दिस मैन। तो इसी तरह अगर जालिका होता, जालिकर रजुल, तो हम कहते दैट मैन। तो इज दैट मैन या दिस मैन, इसके बाद एक प्रेडिकेट लाना जरूरी है ताकि हमें यह पता चले कि आप इस आदमी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये क्लियर हो गया? जी हाँ, क्लियर हो गया ना? तो हाँ ये मैं फिर इसको रिपीट करता जाऊंगा, इंशाल्लाह 2-4 चीजें और पढ़ेंगे तो मैं इसको इंशाल्लाह फिर से रिपीट करूंगा। यहां मैं इस पर इत्तिफा करता हूं। तो आइए पहले बिस्मिल्लाह करेंगे, हम पहले इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए हाज़र रजुलु, हाज़र रजुलु, जब अलिफ लाम वाला आ गया तो अर्रजुल के आखिरी हरफ का आखिरी हरफ जो है यानी लाम, उसके ऊपर एक पेश है। हाज़र रजुलु, दिस मैन, ये आदमी, क्या इसको क्या हो गया है, इसके बारे में मैं क्या कहना चाहता हूं, आप उस खबर का इंतजार कर रहे हैं, आप उस खबर के मुंतजर हैं। फिर मैं कहता हूं हाज़र रजुलु ताजिरुन, ताजिरुन, हाज़र रजुलु ताजिरुन, ये आदमी ताजिर है, ये आदमी ताजिर है। तो हाज़ा इसमें इशारा है, अर्रजुलु मुशारुन इलैहि या बदल, तो ये इसमें इशारा प्लस मुशारुन इलैहि मिलकर बन गया मुरक्कब इशारी, और मुरक्कब इशारी इस जुमले में बतौरी मुब्तदा काम कर रही है, मुरक्कब इशारी। अब इस मुरक्कब इशारी यानी ये मुब्तदा जो है इसकी खबर आती है ताजिरुन, तो ये मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला बन गया, पूरा जुमला, जुमला इसमें है हाज़र रजुलु ताजिरुन, हाज़र रजुलु ताजिरुन। फिर क्या है, व ज़ालिकर रजुलु, इसी तरह ज़ालिकर रजुलु, फिर से इसमें इशारा मुशार इलैहि मिलकर मुब्तदा तबीबुन, और वो आदमी दैट मैन, तबीबुन एक डॉक्टर है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जी। हाँ, तो हाज़र रजुलु ये अलग तरकीब हो गई,
इसमें इशारा प्लस मुशारुन इलैहि, और ज़ालिका अर्रजुल भी इसी तरह इसमें इशारा प्लस मुशारुन इलैहि। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस्मु ताजिरी, इस पूरे सेंटेंस को क्या कहते हैं? किस पूरे सेंटेंस को? जैसे इसमें इशारा मिल गया हाजा, फिर मुशार इलाई रजुलन, फिर खबर तकदीर, तो पूरा सेंटेंस बन गया। तो फिर क्या कहेंगे पूरे सेंटेंस? जुमला इस्मिया, क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे जुमला इस्मिया, यानी जुमला इसम से शुरू हो रहा है ना। मैंने कहा ना सिर्फ दो जुमले याद रखिए आप फिलहाल, एक तो जुमला इस्मिया, एक जुमला फेलिया। जो इसम से शुरू हो रहा है वो उसको आप कहेंगे कि भाई ये जुमला इस्मिया है। सिंपल, वेरी सिंपल, कोई इसमें फिलहाल पेचीदगी पैदा करने की जरूरत नहीं है। हाजा इसमें इशारा यानी इसमी है ना, तो हम इसको कहेंगे पूरा सेंटेंस जुमला इस्मिया बन गया। जुमला इस्मिया जब ये है तभी तो मैं इसमें मुब्तदा और खबर ढूंढ रहा हूं ना। अगर ये जुमला इसमें नहीं होता तो मैं मुब्तदा खबर नहीं ढूंढता इसमें। शाबाश। अब आइए दूसरी लाइन पर। इस्मुत्ताजिरे, इस्मुत्ताजिरे, कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सी तरकीब है? इस्मुत्ताजिरे, शाबाश। इस्मुत्ताजिरे कौन सी तरकीब है? ये तो हमने पढ़ा, आप शायद आगे जा रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं, पीछे भूल रहे हैं। इस्मुत्ताजिरे, शाबाश। हेलो, आवाज नहीं आ रही है साहब। इस्मुत्ताजिरे, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। एक इसम दूसरे इसम की तरफ मुजाफ करके इस्तेमाल किया गया है। यानी हम कहते हैं ताजिर का नाम, इस्मुत्ताजिरी, ताजिर का नाम, ताजिर का नाम, इस्मुत्ताजिरी, ताजिर का नाम क्या है? महमूदुन, महमूद। तो यहाँ इस्मुत्ताजिरी मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर बन गया मुरक्कब इजाफी, और महमूदुन इसकी खबर है। इस्मुत्ताजिरी मुजाफ मुरक्कब इजाफी बनकर ये बतौर मुब्तदा इस जुमले में है, और इस मुब्तदा की खबर है महमूदुन, यानी ताजिर का नाम महमूद है, ताजिर का नाम महमूद है। वस्मुत तबीबी, वस्मुत तबीबी, वस्मुत तबीबी, वस्मु मैंने पढ़ा न कि व इस्मु। कोई मुझे बता सकता है क्यों? हाँ हाँ शाबाश। हमजतुल वस्ल है इसमें, अलिफ हमज़तुल वस्ल बीच में नहीं पढ़ा जाएगा। बहुत अच्छा। वस्मुत तबीबी, अच्छा मैंने यहाँ पढ़ा वस्मुत तबीबी, मैंने तो पढ़ा, लाम को नहीं पढ़ा मैंने। वजह शम्सी है, यानी तो हर्फ शम्सी है। बहुत अच्छा, तो हर्फ शम्सी है, लिहाजा लाम नहीं पढ़ा जाएगा। वस्मुत तबीबी, बहुत अच्छा। वस्मुत तबीबी ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह है, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा बन गया, और इसकी खबर है सईदुन, यानी ताजिर का नाम महमूद है और डॉक्टर का नाम सईद है, और डॉक्टर का नाम क्या है? सईद है, डॉक्टर का नाम सईद है। ये क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। यानी पहली लाइन में आपने इसमें इशारा और मुशार इलैह से मिलकर तरकीब पढ़ी। अब दूसरी लाइन में इसने वापस आपको अपने पहले कायदे की तरफ लाया कि वहां जो आपने पिछले लेसन में पढ़ा था, इसमें ये मुदाफ मुजाफ इलैह, उसको आप याद रखे हैं कि बुला दिए हैं। चलिए अब तीसरी लाइन देखिए। मैंने कहा ना इस किताब की एक एक लाइन में ये होते हैं, कायदे होते हैं, एक एक लाइन में। अब दूसरी लाइन देखिए, हाज़ल बैतु, हाज़ल बैतु, फिर से आ गई कौन सी जो आज हम पढ़ रहे हैं? इसमें इशारा प्लस, शाबाश, क्या है इसमें इशारा प्लस? मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह, माशाअल्लाह, मुशारुन इलैह। तो ये मुरक्कब इशारी, इसमें इशारा प्लस मुशारुन इलैह, बहुत अच्छा। हाज़ल बैतु, ये घर, लित्ताजिरे, 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 शाबाश। लित्ताजिरे, मुझे बताइए पहले ये लित्ताजिरे एक वर्ड है या दो वर्ड है?
दो क्या क्या ले एक ले है, बहुत अच्छा, और क्या है ताजिर ताजिर ताजिर। है या ताजिर है या अत्ताजिर التاجر हाँ अत्ताजिर। अत्ताजिर, बहुत अच्छा। तो जब लाम ज़ेर ले जो है, जो एक हर्फ जर है, जब हम इसको अलिफ लाम वाले किसी इसम के साथ मिलाते हैं तो उसका अलिफ ड्रॉप कर देते हैं, हम लाम पर इस्लाम लिखते हैं। लित्ताजिरी, इसको आप बहुत इस्तेमाल किए हैं, हर एक मुसलमान जानता है। आप कभी कहते हैं ना लिल्लाही, वहां भी है असल में लि प्लस अल्लाह, लिल्लाही। इस तरह लित्ताजिरी फॉर द मर्चेंट, ये घर किसका है, ताजिर का है, यानी हम कहेंगे इट बिलोंग्स टू द मर्चेंट, इट बिलोंग्स टू द मर्चेंट। ये लाम ज़ेर ले क्या है, हर्फ जर है, लाम ज़ेर ले क्या है, हर्फ जर। अब देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है, कितना प्यारा सेंटेंस है। हाज़ल बैतु, ये घर, हाज़ल बैतु, इसमें इशारा और मुशार इलैह से मिलकर तरकीब बन गई। और लित्ताजिरे हर्फ जर और मजरूर, यानी एक जुमले में यहाँ दो तरकीबें आ गई, मुब्तदा बतौर इसमें इशारा प्लस मुशार इलैह, और खबर बतौर हर्फ जर प्लस इसम मजरूर, इसम मजरूर, बहुत अच्छा। इसी तरह का दूसरा सेंटेंस देखिए, वाह और ज़ालिकल बैतु, वो घर, लित्तबीबी, और वो घर डॉक्टर के लिए है या वो घर डॉक्टर का है, दैट हाउस बिलोंग्स टू द डॉक्टर। लित्तबीबी, इसमें यहाँ आप हर्फ शमसी का कायदा भी सीख रहे हैं, फिर से उसको रिपीट हो रहा है, उसको जरा आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अब आइए आगे पढ़े फोर्थ लाइन, बैतुत्ताजिरे कौन सी तरकीब है, मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैह, बहुत अच्छा, मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैह। बैतुत्ताजिरे मुज़ाफुन मुज़ाफुन इलैह, मुज़ाफ प्लस मुज़ाफ इलैह मिलकर मुब्तदा बन गया। बैतुत्ताजिरे अमामल मस्जिदी, अमामल मस्जिदी, अमामा मीन्स सामने, इन फ्रंट ऑफ, मस्जिद के सामने है। ये अमामा, इसका अपोजिट इसी जुमले लाइन में आगे है, खल्फा, अमामा मीन्स सामने, खल्फा मीन्स पीछे। ये दोनों वर्ड इनको आप नोट कीजिए, दोनों वर्ड आप आज सीख रहे हैं नए, इनका ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं एक इसम से पहले, और वो हमेशा उस इसम की तरह मुज़ाफ होकर इस्तेमाल होते हैं। तभी आप देखेंगे अमामल मस्जिदी खल्फल मदरसती, यानी अमामा मुज़ाफ है और मस्जिद मुज़ाफ इलैह, इसी तरह खल्फा मुज़ाफ है और अल मदरसा मुज़ाफुन इलैह। इन दो वर्ड्स को नोट कीजिए, या आप नए वर्ड सीख रहे हैं इस लेसन में। हमेशा बतौरी क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, बतौरी मुज़ाफ इस्तेमाल होते हैं। बैतुत्ताजिरी ताजिर का घर, अमामल मस्जिदी मस्जिद के सामने है। अब पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस पूरे सेंटेंस में मुब्तदा और खबर जो है, मुब्तदा भी एक मुरक्कबी इजाफी है और खबर भी एक मुरक्कबी इजाफी है। ये कहीं मुश्किल तो नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना? अब ये जुमले इसमें है सर। हाँ, ये बिल्कुल जुमला इसमें है, जुमला इसमें। अभी हम जुमला फैलिया की तरफ जाएंगे ही नहीं, अभी काफी टाइम है जुमला फैलिया की तरफ जाने के। अभी जुमला इसमें है कि मुख्तलिफ डायमेंशन हम समझने की कोशिश करेंगे। बैतुत्ताजिर, ये भी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, अमामल मस्जिद, ये भी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। इसी तरह वा ज़बर वा, ये तो एक हरफ है। बैतुत्तबीबी, ये भी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, खल्फल मदरसती, ये भी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। यानी दो सेंटेंसेस है और दो सेंटेंसेस में 4 बार मुरक्कब इजाफी आया। शाबाश। आगे देखिए, लिमन हाजिही अस्सय्यारतु, हाजिही
अस्सय्यारतु, सय्यारतुल मोनस है तो हमने हाजी की इसमें इस्तेमाल किया। हाजी फिर है अस्सय्यारतु, अगर अलिफ लाम के बगैर होता तो होता हाजिही सय्यारतुन, यानी दिस इज ए कार, लेकिन हाजिही अस्सय्यारतु, या अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे हाजिही सय्यारतु, क्योंकि सीन भी हरफ शमसी है। हाजिही सय्यारतु मीन्स दिस कार, ये गाड़ी। हाजिही सय्यारा, दिस कार, ये गाड़ी। लिमन हाजिही सय्यारतु, ये गाड़ी किसकी है? वह, और लिमन तिलका, और वो किसकी है, यानी वो गाड़ी किसकी है? जवाब मिल रहा है हाजिही सय्यारतु, हाजिही सय्यारतु, ये गाड़ी लित्तबीबी, किसकी है? डॉक्टर की है। बहुत अच्छा। वतिल का, और वो वाली जो है वो गाड़ी, यानी वतिल का सय्यारा, वो गाड़ी लित्ताजिरे, ताजिर की है। बहुत अच्छा, ताजिर की है। फिर आ गया हाजिही सय्यारतु, यानी ये गाड़ी जो है, यानी डॉक्टर की गाड़ी जो है, मिनल याबान, इट इज फ्रॉम जापान, इट इज फ्रॉम Japan. What does that mean? It is from Japan. Means it is made in Japan. It's made in Japan. Yes, it's made in Japan. वतिलका and that car, वो गाड़ी, यानी जो ताजिर की है, min America, that's made in America. That's made in America. चलिए, बहुत अच्छा। तो ये था आज का हमारा जो है लेसन जो है। मेड इन आएगा कि से है? हाँ, क्या से आएगा कि हाँ, अमेरिका से आएगा कि मेड इन अमेरिका? हाँ, ये असल में दोनों चीज है। असल माने अगर लिटरल मीनिंग हम देखेंगे तो इट मीन्स फ्रॉम अमेरिका, या अमेरिका से, मिनल याबान मीन्स जापान से। तो इसका मतलब ये नहीं होगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहूं कि हाजा अत्तबीब मिन अमेरिका, ये डॉक्टर अमेरिका से है, वो हाजा अत्तबीब मिन अल याबान, और ये डॉक्टर जो है जापान से है, तो उसका माने वहां अलग होगा बनिस्बत इसके कि मैं आपको कहूं कि ये गाड़ी जो मेरी है, या ये गाड़ी जो है ये जापान से है, और ये गाड़ी जो मेरी है ये अमेरिका से है। तो इट इटसेल्फ मींस के ये मेड इन अमेरिका, मेड इन अमेरिका है। चलिए, तो अब तमरीन पे आइए। अजिब अनिल अस्इलति अलातिया, आने वाले सवालात के जवाब दीजिए। मन हाज़र रजुल, ये आदमी कौन है? मन हाज़र रजुलु, ये आदमी कौन है? शाबाश, कौन था ये? हाज़र रजुलु, हाज़र रजुलु ताजिरी, ना फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाज़र रजुलु ताजिरुन, क्योंकि ताजिरुन खबर है, खबर पेश वाली होती है, मुब्तदा भी पेश वाला होता है, तो इसलिए यहाँ भी पेश आ गया, यहाँ भी पेश, यहाँ चूंकि अलिफ लाम नहीं है तो दो पेश आएंगे। हाज़र रजुलु ताजिरुन। शाबाश। दूसरा सेंटेंस सवाल है, वमन ज़ालिका रजुल, और वो आदमी कौन है? शाबाश, जवाब दीजिए। ज़ालिका रजुलु तबीबुन, ज़ालिका रजुलु तबीबुन। शाबाश, शाबाश, तबीब, बहुत अच्छा। ज़ालिका तबीबुन नहीं पढ़ सकते? जरूरी नहीं है, हम ये कहेंगे ज़ालिका रजुलु तबीबुन, ज़ालिका रजुलु। मैं इसके बारे में आपको ये बता दूं, अगर आप ज़ालिका रजुलु के बारे में एक यानी सिंपल बनाएंगे तो आप ज़ालिका के बजाय हुआ इस्तेमाल करेंगे। वो भी एक सूरत है ना, वो भी आप ज़ालिका मन ज़ालिका रजुल हुआ तबीबुन, हुआ तबीबुन, ठीक है। ज़ालिका लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़ालिका भी लगा सकते हैं, जैसे इसने यहाँ कहा था वतिलका मिन अमरीका, वतिलका क्या ऊपर कहा था, वतिलका मिन ताजिर। फिलहाल हम सिंपल लेवल पे, तो मैं सिंपल ही इसको आगे बढ़ा रहा हूँ सिंपल में। नंबर 2, मस्मुत ताजिरी, मस्मुत ताजिरी, क्या नाम था ताजिर का? इस्मुत्ताजिर महमूद। शाबाश, इस्मुत्ताजिर महमूदुन। और दूसरा सवाल है उसमें, मस्मुत तबीबी, डॉक्टर का नाम क्या है? जवाब क्या देंगे आप?
اسم واسم سعید واسم الطبيب واسم الطبیب سعید 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 واسم الطبیب سعید شاباش بہت اچھا سعید شاباش من این سیارۃ الطبیب ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے سيارة الطبيب من اليابان. بہت اچھا سیارۃ الطبیب سیارۃ من الیابان یابان شاباش یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہیا من الیابان وہ جاپان سے ہے یعنی اس کے بدلے ایک ضمیر استعمال پروناؤن استعمال کریں گے ہیا من الیابان اور دوسرا کوشچن یہاں ہے من این سیارۃ التاجر تاجر کی گاڑی کہاں سے ہے کیا کہیں گے آپ هي من أمريكا ہیا من امریکہ دیٹس فرام امریکہ شاباش بہت اچھا تو ہم نے پہلا کوشچن کمپلیٹ کیا نہیں ابھی دو اس میں پارٹس ہیں این بیت التاجر تاجر کا گھر کہاں ہے بیت التاجر بیت التاجر أمام المسجد. امام المسجد بہت أمام اچھا المسجد بہت اچھا نمبر 7 این بیت الطبیب بیت الطبیب خلف 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 المسجد ہاں میں ایک پوائنٹ یہاں بھول گیا آپ کو بتانا یہ امامہ اور خلفہ جو ہے آپ اس کو استعمال کریں گے ہمیشہ کیا آپ اس کو استعمال کریں گے ہمیشہ زبر والا کیونکہ یہ بطور ظرف استعمال ہوتے ہیں ہوتے ہیں چلیے تو ہاں این بیت الطبیب خلف المسجد بہت اچھا تو نمبر 2 پڑھیں گے کوشچن نمبر 2 اقرا واکتب اب آپ ایک ایک کر کے اس ایک سینٹینس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو میں شروع کروں گا پہلے یہاں پہ ہیں میرے کوئی ہے تو آپ برہان ملک سے ہم شروع کریں گے شاباش حاضل شاباش حاضل والا دو الف لام والا ہے نا ولد هذا ولد هذا ولد خالد خالد هذا بہت اچھا الولد. حاضل ولد خالد خالد بہت اچھا وذلك الولد محمد میم کے پہلے میم کے وہ پیش ہے محمد محمد شاباش حاضل معنی کیا ہے اگر آپ معنی بتا سکتے ہیں حاضل ولد نہ صرف معنی بتائیے بس خالد کے نہیں یہ لڑکا خالد شاباش یہ حاضل ولد لڑکا خالد ہے. یہ لڑکا خالد یہ لڑکا خالد ہے خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے محمد ہے بہت اچھا شاباش نیلم افروز ہے آپ پڑھیں والرجل رجل مدرس وذلك الرجل مهندس بہت اچھا بہت خوب کیا معنی ہوگا یہ آدمی استاد ہیں اور وہ آدمی انجینئر شاباش میں یہاں بھول گیا آپ کو ایک چیز یہ پوچھنا چونکہ حاضر الولد یا ذالک الولد حاضر الرجل و ذالک یہ سارے کے سارے مرکب کیا ہے کون سے مرکب ہیں مرکب اشاری ہیں یہ مرکب ہے نا مرکب یعنی اسم اشارہ پلس مشار نے لائے سارے ملے ہوئے ہیں اسم اشارہ پلس مشار نے لائے شاباش نمبر 3 شاباش غلام حسن ہے شاباش اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو یا آپ پڑھیں غلام قادر بٹ صاحب ہیں کوئی نمبر 3 پڑھیں شاباش جاوید صاحب جاوید احمد مخدومی هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم. ذالک آپ کون پڑھ رہے ہیں میں نے 2-3 لوگوں کا نام بتا دیا غلام کا پڑھ رہا ہوں. اوکے بہت اچھا هذا الكتاب جدید یہ کتاب نئی ہے اور وذلك وہ الكتاب کتاب الجديد پرانی ہے وہ اور وہ کتاب کتاب پرانی پرانی. ہے بہت اچھا چلیے جاوید صاحب آپ پڑھیں هذه السيارة لعلي وتلك لخالد. بہت اچھا معنی کیا ہوگا یہ گاڑی علی کے لیے ہے اور وہ خالد کے لیے. بہت اچھا علی اس میں کی ہے، علی کی. ہاں علی کی ہے یا علی کے لیے دونوں آئیں گے
शाबाश। अब ये डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में है, किस सिचुएशन में आप क्या बताना चाहते हैं। मिसाल दो गाड़ियां आपने देखी तो आप कहते हैं ये अली की है और वो खालिद की है। दूसरा ये है कि आपने दो गाड़ियां परचेज की, आपको कोई कह रहा है ये किसके लिए है, किस लिए, आप कहते हैं ये अली के लिए या मेरे बेटे अली के लिए, वो मेरे बेटे खालिद के लिए, मेरे भाई खालिद के लिए है। तो उस वक्त आप दोनों ले जो है दोनों माने के लिए आता है। शाबाश। नंबर 5 वसीम अहमद। हाजल बाबू नहीं, आप तो कोई नहीं, पता नहीं कौन पढ़ा है। मदीन साहब आप पढ़ें। जी, हाजल बाबू मफ्तूहुन व ज़ालिकल बाबू मुग़लक़ुन। माशाअल्लाह। हाजल बाबू मफ्तूहुन व ज़ालिकल बाबू, ये दरवाजा खुला है, मुग़लक़ुन, वो दरवाजा वो दरवाजा बंद है। बंद है। मफ्तूहुन का अपोजिट क्या है, मुग़लक़ुन, ठीक है ना। शाबाश। हाँ, इसके बाद है नादिया, आप पढ़ें। नादिया, हाँ नादिया है। लिमन हाज़िहि साअतुन हियल अब्बासिन। ना, फिर से पढ़ो शाबाश। लिमन हाज़िहि साअतुन, साअतुन नहीं आएगा ना, क्योंकि इल्फलाम वाला वर्ड है, तनवीन नहीं आएगी। अब दो एक पेश आएगा, लिमन हाज़िहि साअतु। बहुत अच्छा, शाबाश। इसके बाद हिया ले अब्बासिन, ये अब्बास के लिए है, अब्बास की है। शाबाश। लिमन हाज़िहि साअतु, ये घड़ी किसकी है, साअतु मीन्स वॉच, घड़ी। हिया ले अब्बासिन, ये अब्बास की है, अब्बास की है। शाबाश। नंबर 7 अब दिलावर साहब पढ़े आप। दिलावर मलिक। हाज़िहि दर्राजतु, नहीं ऊपर तो छोड़ दिया है। सेवंथ ऊपर। हाज़ल बैतु लित्तबीबी ला हुवा लिलमुदर्रिसी। लिलमुदर्रिसी, शाबाश। माने क्या होगा? क्या ये घर डॉक्टर का है? नहीं, ये उस्ताद का है। ये उस्ताद का नहीं, वो उस्ताद का है। हाँ, बहुत अच्छा, नहीं वो उस्ताद का है। शाबाश। फिर क्या है नंबर 8? हाज़िहि दर्राजतु लिइब्नी लिइब्नी पढ़ सकते हैं, लिइब्नी पढ़ सकते हैं जी, लिइब्नी पढ़ सकते हैं क्या? हाजी दर्राजा लिब्न पढ़ेंगे। हाँ, हमज़तुल वस्ल है ना। लिब्नुल मुअज्जिन, ये मुअज्जिन के बेटे की बाइसिकल है। क्या ये मुअज्जिन के बेटे की बाइसिकल है? हाजी दर्राजतु लिब्नुल मुअज्जिन, क्या ये मुअज्जिन के बेटे की? नाम, हाँ। चलिए मदीन साहब आप फिर से पढ़े नंबर 9। मन हाजल वलदु हुवा तालिबु मिनल इराक। हुआ तालिबुन, हाँ, हुआ तालिबुन मिनस असल में किताब पर मिनल इराक लिखा हुआ है। आप नाराज ना हो जाए मोदी साहब से, किताब पर मिनल इराक लिखा हुआ है, लेकिन जो यहाँ हमारे पास स्क्रीन पर है इस पर लिखा है मिनस सीन। बहरहाल इराक मीनस इराक, सीन मीनस चाइना, कोई मसला नहीं। मन हाजल वलदु, ये लड़का कौन है? हुआ तालिबुन, ये तालिब इल्म है, मिनस सीन, चाइना से, या मिनल इराक, इराक से। शाबाश। गुलाम हसन साहब आप पढ़ें नंबर 10। कोशिश करें सभी लोग, कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक ना पढ़ेंगे तब तक। शाबाश। गुलाम कादिर भट्ट साहब पढ़े। अज़ालिकल बैतु जदीद, हाँ, क्या वो घर नया है? नहीं, हुआ कदीम जिद्दन, वो बहुत पुराना है। बहुत अच्छा। नंबर 11 शाबाश। नीलम अफरोज। सयारतुन मिनल याबानी व तिल्का मिन अमेरिका, ये गाड़ी जापान
जापान मेड इन जापान है और वो गाड़ी मेड इन अमेरिका बहुत अच्छा, शाबाश। बुरहान मलिक, अमेरिका से है या हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गॉट इट। हाँ, बुरहान मलिक सा पढ़ें आप, नंबर 12 लास्ट। हाज़ा सिकीनु मिनल मन हाज़ा सिकीन मिन हाज़ा सिकीन मिन, और फिर अलिफ है, इसके ऊपर हमजा है, यानी हमज़तुल क़त्ई है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप पढ़ेंगे मिन अल्मानिया, मिन अल्मानिया वतिलकल वतिलका मिन वतिलकल मिन इनकिलतरा, मिन इनकलतरा, मिन इनकलतरा। अल्मानिया किसको बोलते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? शाबाश, नोट डाउन। अल्मानिया कहते हैं जर्मनी को, इनकिलतरा कहते हैं इंग्लैंड को। इनकिलतरा का किसको कहते हैं? इंग्लैंड को। आज सकीन, ये चाकू मिन अल्मानिया जर्मनी से है, वतिल कल मिलकतो, और वो चमचा मिन इनकलतरा इंग्लैंड से है। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ कुछ 10-15 सेकंड बचे हैं। हम यहीं पे फर्स्ट मीटिंग ऑफ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला 5-6 मिनट में हम दूसरी मीटिंग को शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ, मैंने पहले हिलाल साहब की क्लास ज्वाइन की थी, इसलिए लेट हो गए, फिर मैंने उनको कॉल की, उन्होंने